आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। I, Zahra Patel, and it is an honor to be your host for this beautiful occasion. Excitement to the event is my great co-anchor, Mr. Ghazal Ali Khatib. Thank you, Zahra ma'am. It is my pleasure to join you in welcoming all our esteemed guests. Together we look forward to make this event a memorable one for everyone. Ladies and gentlemen, it is a privilege to have among us our Honorable Chief Guest, Chairman and Chief Executive Councillor, LHDC Kargil, Dr. Mohammad Jafar Ahmed. Guest of Honor, Executive Councillor, LHDC Kargil, Mr. Kacho Mohammad Farouk, and all our distinguished guests. Of our talented trainees who are about to receive their national trade certificates. Their journey has been one of dedications and passion, and today they stand ready to step into the world with confidence. हौसलों से अपनी उड़ान भरते रहो, हौसलों से अपनी उड़ान भरते रहो, हर मुश्किल को पार करते रहो। कामयाबी खुद चलकर आएगी पास, कामयाबी खुद चलकर आएगी पास, बस अपने सपनों को सजाते रहो। This program, I invite our Superintendent ITI Kargil, Mr. Abid Hussain, to deliver the welcome address and give us a brief presentation on the achievements and activities of ITI Kargil. Chairman, Chief Executive Councillor, LHDC Kargil, Dr. Mohammad Jafar Ahmed sir, Chief Guest of the occasion. With your kind permission, sir, I would like to start the proceedings of today's session. First and foremost, I would like to welcome the Chief Guest of the occasion, the Honorable CC LHDC Kargil, Honorable Executive Councillor LHDC Kargil, Shri Kacho Mohammad Farouk Khan sir, Chief Planning Officer Kargil, Shri Abdul Hadi sir, Nasir Shahari sir, Senior Faculty, Government Degree College Kargil, Senior Faculty and Novel Officer for Skin Senior Dr. Jawahar Iqbal sir, all the dignitaries present here and dear friends, warm welcome to all of you. Today, on the 26th of October 2024, we are celebrating the convocation ceremony of ITI Kargil. This is a nationwide program which has been launched by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. So this
family is today celebrated across the country in all ITIs and at the national level in New Delhi Kaushal Bhavan. कौशल दीक्षित समारोह। आज के इस समारोह में हम जो हमारे पिछले ITI के एग्जाम में जो बैठे थे बच्चे हमारे CTS 2024 में सब पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनको हम फेसिलिटेट करेंगे विद their national trade certificates. So it marks a very important day in the training mindset of the trainees. After 1 year of CTS scheme, Government of India का approved scheme is a craftsman training scheme जिसमें long term courses होते हैं, which ranges from 1 year to 2 years. Second, ITI कारगिल में हम PM विश्वकर्मा कौशल विकास योजना में भी हम यहाँ पे ट्रेनिंग्स करा रहे हैं. Next slide. जस्ट ए ब्रीफ ऑफ द ट्रेड सर, टोटल हमारे पास 13 ट्रेड्स ITI में चल रहे हैं, इसके डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं सर. स्टेनोग्राफी, सिविल टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन, वुड वर्क टेक्नोलॉजी और डाटा एंट्री ऑपरेटर. So this is the admission status of the current year sir. Against the sanction strength of 276, we have 255 seats has been filled sir. 92% अटेंड ये हमारा जो एडमिशन परसेंटेज अचीव हो चुका है सर. एक्सेप्ट फ्यू ट्रेड्स जहाँ पे हमारा वुड वर्क टेक्नीशियन है उसमें कुछ सीट्स हमारे पास बाकी हैं सर. वेल्डर ट्रेड है, बाकी हमारा प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, स्टेनो सारे सीट्स में हमारे पास 100% एडमिशन अचीव हुआ है सर. नेक्स्ट चलो प्रीवियस प्रकार फॉर मनकबत रिसाइटेशन. अस्सलाम वालेकुम. मैं आज आप सभी के सामने एक मनकबत पेश करना चाहता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कोई आपसा देखा नहीं, कोई आपसा देखा नहीं, कोई आपसा देखा नहीं, कोई आपसा देखा नहीं. देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं. देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं. देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं. हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं. देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं. एक से एक बढ़कर हंसी देखे मगर या मुस्तफा. एक से एक बढ़कर हंसी देखे मगर या मुस्तफा. तुमसे बढ़कर हुस्न वाला दूसरा देखा नहीं. देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं. मीम का पर्दा हटाकर वो निगाहे शौक से. मीम का पर्दा हटाकर देखा नहीं, कोई आपसा देखा नहीं, कोई आपसा देखा नहीं. जन्नत की बातें शौक से मैं तो कर सकता नहीं. जन्नत की बातें शौक से वो करे जिसने
नहीं मिल पाती। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। Now I would like to invite Kausar and group to present a kawali. या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, बर्द झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में, बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में, झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, बर्द झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, आऊंगा खाली, बर्द झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। Honorable Chief Executive Council, Dr. Mohammed Jafar Saab, Honorable Executive Council, Superintendent ITI, Chief Planning Officer, Shavani Saab, esteemed guests and my dear students, Assalamu alaikum. मैं सबसे पहले ITI और सुपरिटेंडेंट ITI को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आज आप लोग इस कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्पेशली आप सारे स्टूडेंट्स को गोइंग टू गेट द सर्टिफिकेट आज कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीशन करने के बाद आप लोग सर्टिफाई हो रहे हैं, तो आप सबों को बहुत बहुत मुबारक। मेरा ये मानना है कि आज जो जितने भी स्टूडेंट्स टेक्निकल एजुकेशन में या स्किलिंग में इनरोल हैं या जो सर्टिफाई हो रहे हैं वो स्पेशल हैं, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में आप जानते हैं हमारा जो यूथ पॉपुलेशन है इट इज़ ऑलमोस्ट 54%। इस 54% में जो डाटा हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स है उसमें सिर्फ 2% स्किल्ड है, तो आप जान सकते हैं आप उस 2% में आ रहे हैं। सो ये चीज़ इस चीज़ का एहसास होना, इस चीज़ को रियलाइज़ करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के लिए भी आज एक मेजर चैलेंज यही स्किल वर्क फोर्स का है। जब हम अपने आप को दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने नेबर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो हम बहुत ही पीछे हैं। हमारा जो वर्क फोर्स है स्किल वर्क फोर्स में आज सिर्फ 24% है, 4% है, और साथ में आप चाइना का देखेंगे तो 24%, आप आगे जाके यूएस का देखेंगे इट इज़ ऑलमोस्ट अबव 50%, जर्मनी यूरोप में जाएंगे 75%, आप कोरियन पेनिनसुला में साउथ कोरिया में देखेंगे तो 90%। तो कहने का मतलब ये है कि इन कंट्रीज़ को जहाँ पे ये देखा गया है कि स्किल वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है उनको डेवलप कंट्रीज़ भी कहा जाता है। KVY और वो भी वी हैव इंट्रोड्यूस इन कॉलेजेस में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें हम लोग नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स को एक मौका दे रहे हैं कि मान लीजिए वो ड्रॉप आउट है या रेगुलर एजुकेशन नहीं कर पाया या कॉलेजेस में इनरोल नहीं है, तो वो भी अभी हमारे कॉलेजेस में अंडर PMKY डिफरेंट कोर्सेज स्किल कोर्सेज के लिए इनरोल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें चल रहा है, हमें उम्मीद है कि इस चीज़ को हम लोग सक्सेसफुली आगे ले जाएंगे। बट ताली एक हाथ से नहीं बचता है, और जो हमारा अपना मानना है एकेडमिक्स में इट्स जो टीचिंग लर्निंग है इट्स टू वे प्रोसेस। जितना गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे, जितना टीचर एफर्ट करे, अनलेस एंड अनटिल आपकी साइड से पॉजिटिव अगर रिस्पॉन्स नहीं आता यू आर नॉट गोइंग टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। मुझे वो लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, जितना इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, अगर आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो ये सब कुछ बेकार जाएगा। तो ये चीज़ इस चीज़ का हमें रियलाइज करना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मान लीजिए आज आपने इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया तो आने वाले बच्चों को इन चीज़ों का पता नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको कंटिन्यू नहीं रख सकता अगर हम लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव आउटपुट नहीं निकाल पाते। तो इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखें। अभी रिसेंटली
मुझे मौका मिला डेनमार्क जाने का, वहाँ के इकोसिस्टम को स्टडी करने का। तो उनका जो आइडिया पॉलिटेक्निक सिस्टम है उसमें ऑलमोस्ट मुझे बताया गया कि 5000 तो एक कंप्लीट इंजीनियर बन के निकल के आप बाहर आ जाते हैं। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप हमारे बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन और हमारे इंजीनियर्स हैं। आज उसी चीज़ को गवर्नमेंट सर्टिफाई कर रहा है कि यहाँ से ट्रेनिंग लेके निकल रहे हैं यहाँ पर। तो आपने अपने फ्यूचर को, स्कोप के फ्यूचर को आपने ही बनाना है। आप लोग मुख्तलिफ ट्रेड्स में काम करेंगे, आप लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, आप लोग गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर में भी काम करेंगे। ये जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है आप लोगों को, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है। तो जब आप कहीं पे अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो आपका फील्ड है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, प्लम्बिंग है, कोई भी हो, उस वक्त ये सर्टिफिकेट आप उनको मदद करेगा उस जॉब में आगे बढ़ने के लिए, सिलेक्शन के लिए। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। उसके लिए इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल सीरियसली ले लीजिए। ट्रेनिंग चिताम से ना, खंबाल से ना बेकार बैठना आप लोगों का मकसद नहीं है। आप लोगों का मकसद ये है कि ट्रेन हो गया हो, मेरे पास जो स्किल डेवलप हुआ है इसको मेंटेन करना है, 2 महीनों को ले सकती और उसको आगे बढ़ाना है, अपग्रेड करना है। ये सोचना है आप लोग। अब गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना पड़ेगा कि हमारे जो स्किल लेवल जो डेवलप हुआ है उसको और अपग्रेड करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग। मुझे बहुत अच्छा लगा जब जावेद साहब हो या नासिर शाबानी साहब, जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं यहाँ पे। नासिर शाबानी साहब शायद यहाँ पे इसलिए नहीं आ पाए कि टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट रहा है, उसके लिए मुझे थोड़ा अफसोस है। लेकिन जो नॉलेज आप लोगों के पास है, खुदा का नॉलेज सिर्फ अपने तक ना रखें। आप हमारे ऑनरेबल सीसी साहब के पास और काउंसिल में जरूर आते हो, अपने नॉलेज को और अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कीजिए, ताकि क्योंकि काउंसिल एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, आप हमारे पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करके करिए और लेके तरक्की को आगे लेने के लिए हमारी मदद कीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरी बात यह है, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने आबिद साहब से पूछा कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है या जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि मोर देन 60% जो है हमारी बच्चियाँ हैं। दिस समथिंग वेरी पॉजिटिव फॉर द सोसाइटी। हमारे सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग हमारे सोसाइटी में हमारे बिजनेस वुमेन बनेंगे, आप लोग हमारे इंजीनियर्स बनेंगे। अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जनरल ऑब्जर्वेशन की मेरी, कि हमारे ITI के अंदर में स्पेस की थोड़ी कमी है। ये देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। तो फिर मैंने आबिद साहब से थोड़ा पूछा तो कहते पर्सनल्स होना चाहिए। जैसे डॉक्टर नकी साहब ने बताया कि एक जगह को, एक डिस्ट्रिक्ट को ये क्या बताया कि हमारे इंडिया का स्किल में पावर कितने % है और आगे जाके डेवलप कंट्रीज का कितने % है। तो मुझे मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। मैं भी डेनमार्क गया था और मेरा दूसरा उसमें था बहुत पहले 1992 में। तो मुझे लगा कितना वो लोग ये उनके साइंस और टेक्नोलॉजी कितना डेवलप है। हालांकि वहाँ पे मैंने देखा उनमें 11 बजे तक गर्मियों में धूप रहता है और सर्दियों में 3 बजे रात होता है, सुबह आपका 8-9 बजे तक रात रहता है, फिर भी वो डेवलप है। और मैंने देखा पानी ही, आप देखिए पानी गर्म आता है, कहाँ से आता है हमें पता नहीं चलता। अब हम यहाँ कहते हैं कि हमारे पास ये कोल्ड क्लाइमेट है, बर्फ़ है, ये है, वो है, हम नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, जब आप करने पे आए ना कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर नकी साहब का जो स्किल के बारे में इन्होंने जो अपना सजेशन दिया होगा, विल टेक इट सीरियसली। मैं बीच में आपके न सिर्फ आपके काम आए बल्कि आपकी फैमिली को पालने के लिए, आपकी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, आपकी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए काम आए। तो उसमें ऐसा तालीम होना चाहिए, सिर्फ आप किताबों से निकल के बाद में आप आगे जाके फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मेरे हिसाब से
जो तालीम है अभी शुक्र है उसमें काफ़ी चेंज आ रहा है। मेरा आइडिया वालों से और एक गुजारिश भी है, जैसे आपके बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, प्लम्बिंग का करते हैं, टेलर का, आपका इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग करते हैं, मेरा ये है प्लीज़ आप अगले साल से इंटर्नशिप शुरू कर दीजिए। हमारे पास बहुत सारे बड़े बड़े ठेकेदार हैं, कंट्रैक्टर्स हैं, आपके पास बहुत सारे टेलर्स, बड़े बड़े टेलर्स हैं, आपके पास इलेक्ट्रिशियन कंट्रैक्टर्स के पास होते हैं, बाहर से हमारे लोग आते हैं, वो मतलब स्किल लेबर बाहर से आते हैं, तो उनके साथ मेरा ये मानना है प्लीज़ आप एक ये बना दीजिए कि हमें उनको बच्चों को जो इंटर्नशिप करेगा उसमें थोड़ा ऑनरेरियम टाइप का होना चाहिए, और जो सिखाएगा उनको भी आप बड़े एक क्लास कंट्रैक्टर्स का, ताकि आगे 6 महीने का अगर ट्रेनिंग करें वो इलेक्ट्रिशियन होगा। आप देखिए आज के दिन में हमारे पास इतने स्कोप है ना, इलेक्ट्रिशियन का लीजिए, आपका प्लम्बर का लीजिए, प्लम्बिंग का या बाकी चीज़ों का। अब हम एक प्रतिभा ओपन रेट goes to Samir Abbas from Data Entry Grade. Second position goes to Zahir Abbas from Data Entry Operator. Third position goes to Batul from Data Entry Operator. मेहनत करना। Anis Fatima. कौंसल दोनों जो भी स्किल हमारे बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो उसके लिए किसी भी फील्ड में, किसी भी ट्रेड में स्किल वाला होगा। हमारे कौम को आगे ले जाने के लिए एक स्किल लेबर होना बहुत ज़रूरी है, स्किल फोर्स होना बहुत ज़रूरी है। उसमें ITI जो है हमारा बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। और इस साल अभी मैंने देखा कि हमारे अभी आबिद साहब हमारे सुपरिटेंडेंट ITI आए हैं, तो ये खुद तो बहुत एनर्जेटिक और बहुत उसमें क्या कहते हैं इस ट्रेड को और आगे करने में इंशाल्लाह इनका बहुत अच्छा ये रहेगा। तो एक तो ये है ITI का इनका कुछ इश्यूज था, जैसे लैंड को लेके, नया लैंड के वो लेके हमारे पास लैंड अलॉटमेंट के लिए इनके आए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि करगिल में लैंड का बहुत स्क्रेसिटी है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ITI हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूट है, जिससे हमारे बच्चे ट्रेन होकर निकलेंगे और आगे जाके वो अपने पैरों पे खुद खड़े होने के लिए उनका ये ITI जो है वो बहुत बड़ा रोल कर रहा है। तो इसमें इंशाल्लाह हमने पहले कुछ कनाल दिया था, अभी फिर हमने बढ़ा के मुझे मालूम है कि हमने ITI के लिए और कुछ ज़मीन इनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो हम नहीं दे पाया, क्योंकि हमारे पास लैंड की शार्टेज है। मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ITI को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे दे। और ITI के साथ साथ आज स्किल फोर्स के लिए हमारा नायलट जो है वो भी बड़ा अच्छा एक ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके भी। और हमारे साथ साथ हमारे कॉलेजेस में भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई के साथ साथ वो भी कुछ वो भी प्रोग्राम्स और ये कुछ ट्रेड पे काम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जब बच्चे निकल के यहाँ से जाएंगे, जब ट्रेन होके जाएंगे, तो वो न सिर्फ खुद कफील अपने उसमें खुद कफील हो जाए कमाने में, बल्कि अपने फैमिली के लिए, अपने कौम के लिए और हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए वो कुछ कर पाए। मैं ऐसा उम्मीद है और हम उस पर काम भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। और आप लोगों ने देखा आज बच्चों ने कितना मतलब अच्छा इसमें ट्रेनिंग में वो परफॉर्म किया है। तो एक मिसाल है कि हम इंशाल्लाह करगिल जो है, करगिल डिस्ट्रिक्ट जो है
इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा और उस तरक्की में इनका जो स्किल फोर्स होगा उनका बहुत बड़ा रोल होगा। थैंक यू।